Hello, good morning, dear friends. Today I'm going to teach you figures of speech as you can see on your screen. One thing I want to make over here clear that today I will teach you this very important topic, that is figures of speech. Very first I will tell you something about figures of speech, that what is figures of speech. Do you know what is फिगर्स ऑफ स्पीच? फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? अलंकार। आपको पता होगा फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अलंकार। और अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलंकार का यानी फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे अगर आप हिंदी में सरल शब्दों में अगर समझना चाहें तो इसको हम अलंकार कह सकते हैं। अलंकार होता है, अलंकार कर का काम क्या होता है? जैसे जब कोई अलंकृत होता है, जब किसी को आभूषण पहना दिया जाता है, से सपोज कीजिए कोई स्त्री है, अगर वह आभूषित हो जाती है, उसको आभूषण पहना दिया जाता है तो वह बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। तो अलंकार क्या होते हैं? आभूषण होते हैं। और आभूषण का काम क्या होता है? सुंदरता को बढ़ाना। इन द सेम वे व्हेन वी मेक, you can say, beautify to poetry, when we beautify to poetry, this is the reason we called it figures of speech. Okay. और दूसरी तरफ आपको पता है कि जिस प्रकार कहा जाता है कि जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए गहनों का, आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से जब हम शब्दों के माध्यम से किसी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, शब्दों के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, तो उसे हम अलंकार कहते हैं। सो आई होप यू हैव नो एनी डाउट दैट what is figures of speech in English. So figures of speech, you can say, when through the words, through the line pattern, through the stanza pattern, through the line pattern, through the words, through the, you can say, rhyming pattern of the words, when we beautify the poetry, when we beautify the poetry, this is called figures of speech. I hope you have understood it clearly. Now we will proceed on our topic and we will understood that what is the first kind of parts, figures of speech. Okay, so the first figure of speech, very first you will see, this is simile. What you will see over here? You will see it is simile. So what is simile? We will understand through the this definition. Over here you can see this is simile, and this is very important figures of speech, and it is often asked in the examination. Solution I'm going to tell you. Simile. In a simile, a comparison is made between two different objects which have at least one point in common. In this figure, words of comparison so like and as, you can say, so like as are used. So one thing you will make over here clear, that it means I want to tell you that what is the work of simile. Very first you will understand, a comparison is made. What you will see over here, a comparison is made, the very important thing. It means when a kind of comparison, when a kind of comparison will made in a sentence, in a poetry, in a line, then you can say this is simile. But there is a condition for it. In a simile, a comparison is made, okay, between two different objects. But where you will compare between two objects. You will compare between two objects which have at least one point in common, जिसमें कम से कम उन जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें कम से कम एट लीस्ट एक पॉइंट क्या होगा? कॉमन होगा। मतलब उसमें एक क्वालिटी दोनों में होनी चाहिए। जो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें कम से कम एट लीस्ट एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। इन दिस फिगर्स, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में, यानी सिमिली में, वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन यूज्ड होते हैं। और वो कौन कौन से वर्ड, जो कंपैरेटिव वर्ड हैं, कौन कौन से वो यूज होते हैं? उसमें एज है, लाइक है और
so है, so like as you can see over here, very first word that is so. Okay, after that we use like, and after that we use as. So these kind of you can say comparative words, 1 minute, these kind of comparative words you will use in simile. Okay, so when you will compare between two objects, when you will compare between two objects, and after that you will use the words, comparative words also. So what are these words? You can say so, like, are as used for comparison in poetry. You can very easily understand that this is simile. Okay, so I hope you have understand it, that what is simile. So in a simile, a comparison is made between two different objects which have at least one point in common. तो आपको समझ में आ गया होगा कि simile में हम compare करते हैं, और compare दो objects के बीच में करते हैं, और उन दो objects के बीच में कम से कम एक क्वालिटी, एक पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए इन दिस फिगर। और फॉर मेकिंग कंपेरिजन, एंड फॉर मेकिंग कंपेरिजन, तुलना को हम करने के लिए, कंपेरिजन को करने के लिए हम कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं। और कंपैरेटिव वर्ड कौन कौन से यूज होते हैं? सो, लाइक एंड एज। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी द एग्जांपल्स. After that, we will see the examples and we will understand that what is simile. We will understand that what is simile over here. See. So the first number you can say, thy soul was like a star. Thy soul was like a star. Over here, thy soul यानी उसकी या किसी की सोल को कंपेयर किया जा रहा, कैसे किया जा रहा है? लाइक अ स्टार, like a star. So over here you can see like word we have used. What we have used? Like word. Through this like word we can understand, through this like word we can understand that this is simile. How it becoming over here simile? Because you can say we have used, what we have used? We have used the word like. Okay, we have used a word like. So through this like word we can understand that this is simile. Okay, so thy soul was like a star, यानी किसी के सोल को या उसकी सोल को, तुम्हारे सोल को, दाई सोल को कैसे कंपेयर किया जा रहा है? स्टार के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि लाइक स्टार, यानी उसकी जो सोल थी वह स्टार की तरह चमकदार थी। सो दाई सोल वाज लाइक अ स्टार। यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे कि इस लाइन में सिमिली है? बिकॉज वी हैव सीन कंपैरेटिव वर्ड्स लाइक। ओके, गुड। आफ्टर दैट नेक्स्ट यू विल सी, नेक्स्ट line you will see, what is the next example? The rituous shall flourish as the palm tree. Over here you can say rituous and palm tree के बीच में आप comparison देख रहे हैं, and you can see the comparative words as. The rituous shall flourish as the palm tree, as the palm tree. तो palm tree और rituousness के बारे में, rituous के बारे में क्या किया जा रहा है? कंपेरिजन किया जा रहा है. In this way you can understand, and when we make the comparison between these two objects, we have used the comparative word as also, and in this way very easily we can understand this is simile. Next example you can see, how far that little candle throws his beams, so shines as good deed in a naughty work, in a naughty word. Over here you can say comparative words. So over here we have seen a comparative word so in this way, because this is the line of poetry. How far the little candle throws his beams, कितनी दूर तक जो कैंडल की लाइट होती है वह, उसकी जो लौ होती है वह कितनी दूर तक जाती है. So shines a good deed in a naughty word. So science. So science means in the same way it shines a good deed in a naughty word. In this way we have a comparative word. इस तरह से यहाँ पे हमने एक और comparative word को देखा जो कि क्या है? So. तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे या तो like हो, या तो like हो, या तो as हो, और या तो फिर क्या हो? So.
इन ये जो तीन वर्ड हैं, जो तीन कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, अगर ये कहीं पर आते हैं तो वहां पे क्या होता है, कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच बनता है, सिमिली। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट इट क्लियरली। शायद आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सिमिली क्या होती है। ओके, आफ्टर दैट we will see what is metaphor. You can say second figures of speech over here. You will understand that what is metaphor. So we will understand over here and we will see the definition of the metaphor, that what is metaphor. In a metaphor, a comparison is made between two different objects. So one thing you can see over here, that over here in simile also we are comparing, and comparison between two, and over here in, you can say, metaphor also we are going to compare. Compare is made, comparison is made. 1 minute, comparison is made. So over here in metaphor also, 1 minute, sorry, in metaphor also we have comparison. In metaphor also we have comparison. So in a metaphor a comparison is made, same like simile, but there is a difference. What is the difference? In a metaphor a comparison is made between two objects, यानी मेटाफर में भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो जो तीन कंपैरेटिव वर्ड्स यूज करते थे सिमिली में, उसको यूज नहीं करेंगे। इन अ मेटाफर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, जो वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन थे वह हमको यूज नहीं करने हैं। और कौन कौन से वर्ड्स थे, सो, लाइक एंड एज। ये जो तीन कंपैरेटिव वर्ड्स हैं वह सिमिली में तो यूज होते हैं, कंपैरिजन इसमें भी होता है। कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मेटाफर में भी होता है, लेकिन विदाउट यूजिंग दीज कंपैरेटिव वर्ड्स वी कंपेयर बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। यानी हम बिना इन तीन शब्दों के, बिना इन कंपैरेटिव वर्ड्स को यूज किए ही हम जब कंपेयर करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो वह क्या होता है, मेटाफर होता है। सो मेटाफर, इन अ मेटाफर अ फिगर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी मेटाफर में हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेयर करते हैं, लेकिन हम कंपैरेटिव वर्ड्स सो, लाइक और एज को यूज नहीं करते। दैट इज अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, an implied simile. Okay, it means it is also a kind of simile, but over here we don't use comparative words. Okay, good. After that you will see the examples. Over here you will see the comparison, but you will find out over here that the comparative words were not usable. You can see over, without using these comparative words we can see a comparison, and when we will find comparison in the line of the poetry we can understand that this is simile. So love is the spice of life. Suppose over here अगर यहाँ पे लिखा होता love is like the spice of life, love is like the spice of life, अगर इसमें like word यूज होता, सपोज कीजिए इसमें like word अगर यूज होता कि लव इज द लाइक स्पाइस ऑफ लाइफ, तो ये क्या हो जाता, सिमिली हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमने ये वर्ड यूज नहीं किए हैं, यानी यहाँ पे कंपैरेटिव वर्ड लाइक यूज नहीं किया गया है, फिर भी कंपैरिजन हो रहा है। लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है कि लव क्या है, लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। प्यार जो है वो जीवन का एक तरह से स्पाइस है, तो प्यार को और जीवन के स्पाइस को, यानी स्पाइस को यहाँ कंपेयर किया गया है। तो लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, लव इज द व्हाट इज लव, love is the spice of life, love is the spice of life. It means you can say a kind of comparison between love and spice of life, love and life. So in this way you can understand, and we have a kind of comparison, we are making comparison but we are not using the word so, like and as. So in this way we can
very easily understand that this is simile. Dear students, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सिमिली और मेटाफर में बेसिक डिफरेंस यही है कि जब हम सिमिली को कंपेयर करते हैं, जब हम सिमिली में कंपेयर करते हैं तो वहाँ हम कंपैरेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन कंपैरिजन हम मेटाफर में भी करते हैं, लेकिन हम कंपैरेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करते, कंपैरेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करते। तो हम कंपैरेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, इसके बावजूद हम कंपैरिजन करते हैं, तो वह क्या होता है? मेटाफर होता है। सो लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। यहाँ मैंने बताया आपको कि अगर वर्ड इस तरह से होता या लाइन इस तरह से होती या सेंटेंस इस तरह होता कि लव इज़ लाइक द स्पाइस ऑफ लाइफ, तो अगर हम लाइक वर्ड यूज़ किए होते तब यह सिमिली होता, लेकिन यह सिमिली नहीं है। क्यों? क्योंकि लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, इसमें क्या किया गया है? डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन से रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। अब सपोज कि ऐसा होता है कि रिवेंज इज लाइक अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, अगर लाइक वर्ड यूज किए होते तो क्या होता या सिमिली होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंपैरेटिव वर्ड यूज नहीं किया गया है। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, रिवेंज इज यानी जो बदला लेना होता है वह कहीं ना कहीं क्या होता है? एक तरह से काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस है। किसी से अगर हम बदला लेते हैं तो वह क्या है? वाइल्ड जस्टिस है। सो ओवर हियर रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, यानी हम रिवेंज में और वाइल्ड जस्टिस में कंपेयर कर रहे हैं, बट हम कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हैं। सो रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, यानी जो बदला होता है, यानी हम बदले के बीच में रिवेंज में और वाइल्ड जस्टिस में कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन हम कंपैरेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तुलनात्मक जो शब्द होते हैं सो लाइक और एज का यूज नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद हम कंपैरिजन कर रहे हैं रिवेंज और वाइल्ड जस्टिस के बीच में। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ इस लाइन में क्या है? मेटाफर है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 मिनट, सॉरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। अगर हम इसको बोलें कि द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डिजर्ट, तब क्या होगा? सिमिली। बट ओवर हियर विदाउट यूजिंग कंपैरेटिव वर्ड्स, बिना उन तुलनात्मक शब्दों के, बिना उन कंपैरेटिव वर्ड्स की यूज किए ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बिना उन कंपैरेटिव वर्ड्स को यूज किए ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। किसके किसके बीच में कंपेयर कर रहे हैं? यू कैन सी कैमल के बीच में और डिजर्ट के बीच में। कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, कैमल क्या है? शिप ऑफ डिजर्ट है। कैमल क्या है? शिप ऑफ डिजर्ट है। तो शिप ऑफ डिजर्ट और कैमल के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं। सो विदाउट यूजिंग कंपैरेटिव वर्ड्स, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। इफ आई से दैट द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डिजर्ट, देन इट इज सिमिली। बट ओवर हियर विदाउट यूजिंग comparative words, we are making a kind of comparison over here. The camel is the ship of desert. camel जो है वह क्या है? रेगिस्तान का जहाज है। इस तरह से हम कैमल को क्या बोल रहे हैं? रेगिस्तान के जहाज से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? मेटाफर है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव understand the basic difference of simile and metaphor. And I hope you will like this class, you will understand over here, because figures of speech are the things that are very important for your examination, and they often comes in your examination. So you will understood it, and that what is the basic difference between simile and metaphor. And after that, in the next class, I will tell some more figures of speech. Thank you dear students for seeing this video.